Now, let's start our class. Very good morning to all of you. I'm Good going morning, sir. to teach you database once again. Uttam Chandra, Harsh Sinha, Suman, yesterday you have joined the class, and Sumiran, yesterday you have joined the class, but that was not my class. By mistake, I have scheduled my class and you have joined. Thank you all for giving a mark of respect in this. Now, today again I am going to start the same thing which I have taught yesterday. Okay, Asika, I think I have taught it in your class also. Right. So let's see. We are going to start about the database. What we have taught? Is it visible? Database. Database. Okay. Database is database. Database is a container of table. Database is a container. Container. Okay. It is a container which contain many table, which contain many table. Okay, many tables. Okay. In other words, we can say that it is collection of it is collection of records, collection of records in the form of in the form of in the form of interrelated 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 tables. Okay, interrelated tables, right? It is collection of record in the form of interrelated table. Means in database there will be more than one table, right? In database there will be more than one table. I hope you agree with me. In database there will be more than one table, right? So now I will focus on some of the topics, right? So first is here database. Database, it is organized collection of record in the form of table. Note it down. Database is a collection of record in the form of interrelated table. Okay. Database is a collection of interrelated record in the form of table. Is that clear? Yes, Is that sir. clear? You can unmute yourself. You can Yes, unmute sir. yourself. Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Database is a collection of record in the form of interrelated table. Okay. Table. Now, next. Now, what is table? Table is a collection of interrelated record. What is Aditya Raj? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है. Now, we will focus on this term, tables. What is table? Okay, we will focus on this word, table. So what is table? Table is collection of record in the form of table. क्या है? Collection of records. Collection of records, right? Table क्या है? It is collection of record. मन करे तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ. Collection of record in the form of row and column. ठीक है? Collection of record in the form of row and columns. Okay, row, columns. ओके, तो टेबल आ गया, टेबल के डाटाबेस आ गया, डेटाबेस के अंदर में टेबल, टेबल के अंदर में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? रिकॉर्ड तक बात सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? No, sir. वेरी Yes, गुड. sir. नेक्स्ट क्लियर हो गया? अब आते हैं टेबल हो गया. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
Next we come to the next topic, that is row. Row. Row is also called as row. मैंने क्या लिखा था? Collection of record in the form of row and column. This is called table. Okay, collection of record in the form of row and column. This is called record. This is called table. तो एक शब्द आता है पहला row, दूसरा शब्द आता है column, दूसरा शब्द आता है column. दोनों को हम देख लेंगे. पहला शब्द है हमारा row. This is collection of interrelated data. Collection of one unit interrelated data. ठीक है? Collection of single unit interrelated data. Okay, collection of single unit interrelated data. This is called record. ठीक है? Now what is it for? Either it is horizontal or it is vertical. ये कैसा होता है? Horizontal होता है या vertical होता है? Unmute करके बताओगे सर. Horizontal होगा या vertical होगा? Horizontal होगा या vertical होगा बताओ? Either it will be horizontal or vertical. Horizontal. Horizontal. Collection of single unit interrelated data represented in horizontal form. In horizontal form, right? अब कॉलम का क्या हो जाएगा बताओ? कॉलम का क्या हो जाएगा? It is Vertical. Vertical. collection of ये बताओ सेम टाइप ऑफ डेटा बोलेंगे. ठीक है? रो में अलग अलग डेटा रहता है, रिकॉर्ड में अलग अलग तरह का डेटा रहता है. ठीक है? मगर इसमें क्या रहता है? collection of similar type of data. Collection of similar of data. Collection of similar type of data. This is called column, and it is in vertical form. It is in vertical form. Is that clear? Yes, sir. Yes, Is sir. that clear? Yes, sir. सभी को Yes, समझ में sir. आ गया? चलो बहुत अच्छे. ये बताओ बच्चों, एक बात बताओगे? जिसको बताना है वो हैंड रेज करेगा. ठीक है? They will raise their hand. Heterogeneous पढ़े हो? Have you studied heterogeneous? Have you studied heterogeneous? Who will define heterogeneous and homogeneous? Raise your hand. Who will define heterogeneous and homogeneous? Harsh Sinha? Harsh Sinha? Keep your videos on, everybody. Please keep your videos on, everybody. चलो उत्तम. गुंजा तुम बताओ. गुंजा unmute yourself. Yes, sir. Sir, heterogeneous is a substance which is made up of different particles, and homogeneous are the substance which made up of similar type of particles. Very good. Aditya. Trisha, you unmute yourself. Now Aditya Raj. Yes, sir. Those Homogeneous who are the want to substance- speak, raise your hand. Tell me, Aditya. Homogeneous are the substance which is made up of same kind of atom, and heterogeneous are the substance which is made up of different kind of atoms. चलो बहुत अच्छे. Very good. Down your hand. Next. Anybody else? Sumiran, can I get answer from you? Sumiran. What about the Salja? She was the first position in my class, and I knew it in the last.
Salja, unmute yourself. Yes, sir. What about can you define the homogeneous and heterogeneous and start your video? Salja, Yes, sir. can you define homogeneous and heterogeneous? Yes, sir. Tell me. Sir, homogeneous mixture are those mixture which are made up of same kind of particles. And heterogeneous mixtures are those mixtures in which particles are not completely dissolved. Right. तो मेरे एक सवाल का जवाब बताना. अभी हम एक सबके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है? This is for one and all. Those who wish to reply, you can reply, right? I am drawing a table, okay? You see, this is I'm going to draw the table. Admission number, okay? Name, and I am writing class, okay? I am writing section. So, okay. Now see here, admission number 101, name Amit, class 9, section D. 102, 2 Sunil, class 10, section B. Okay, 103, Aparna. Okay, Aparna, 11 C. Okay, now I am going to ask question. Be ready to respond. Keep your videos on so that I could spotlight you. Okay, now this is row. ये एक row है, ठीक है? So I am circling it, I am highlighting it. This is row. Okay, this is row. This is row. ठीक है? ये क्या है? ये रो है, ठीक है? ये क्या है? ये एक रो है. आई होप यू गॉट इट. सभी को समझ में आ रहा होगा ये क्या है? रो है. कैमरा ऑन रखोगे सभी. बी ऑन द स्क्रीन माय डियर. बी बोल्ड. लर्न टू शो योर फेस. चेहरा दिखाना आसान बात नहीं होता है, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है? वो सबके पास नहीं होता है. बार बार बोलते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, मैथ, कंप्यूटर सब बात की बात है. शिक्षा का मतलब होता है परिवर्तन लाना. परिवर्तन होना चाहिए तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे वैल्यूज में, तुम्हारे इमोशन में, तुम्हारे थिंकिंग में. तो सबका वैल्यू डाउन है. पहले चेहरा छुपा के रखते हो, ठीक है? सामने बात क्या करो. ये देखो मैंने ये क्या है, ठीक है? व्हाट इज दिस? टेल मी ऑल ऑफ यू. रो और कॉलम. Row. पक्का? श्रेष्ठा, अनम्यूट योरसेल्फ. श्रेष्ठा अनम्यूट करो, कैमरा भी ऑन करो. श्रेष्ठा को क्लास 9 के बाद हम देखा भी नहीं है. चलो शैलजा बताओ क्या है? ये रो है. ओके, नासिका, मेरी आवाज वहां तक जा रही है? एकदम वहां पहुंच रहा है ना? ठीक है. चलो ये देखो क्या है? ये रो है, ठीक है? नाउ ठीक है, अब देखो यहाँ पर. अब हम इसकी कॉलम की बात करते हैं, ठीक है? अब इसको देखो, ये वाला, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? ये वाला. इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं ऐसे करके, है ना? ऐसे करके. ओके, तो ये बताओ ये क्या है? बताओ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलम. दिस इज कॉलम. क्या है? कॉलम है. ओके, अब ये बताओ मेरा सवाल. अभी तक हम सवाल नहीं पूछे हैं, कहानी कह रहे थे. मेरा सवाल, one is homogeneous, either row or column. बोलो होमोजेनस कौन है? बरसा. Sir, column. Which one is homogeneous? My question is, I have unmuted all of you.
I have unmuted all of you. Which one is? Come on the screen and speak. Sir, column. Column is homogeneous. Homogeneous. Okay, clear. Very good. Yes, sir. Now, which one is heterogeneous? Row. Why? Because it contains different type of data like admission number, name, Very class, and good. section. Acha, why and how you can say this, Gunja? Yes, sir. How you can say it contains different type of data? Sakshi, Sir, Sakshi, unmute yourself. Sakshi, how it contains different type of data? बताओ, बताओ जल्दी, बोलो आशिका, बोलो. Sir, because it has character, alphabets and numbers. चलो और कोई? मनीषा, सुमिरन चला गया जी, सुमन और सुमिरन. No, sir. अक्षय सिंह, तुम म्यूट मत हुआ करो, म्यूट हो जाओगे तो फिर हम अनम्यूट करने का हमसे परमिशन लेना पड़ेगा. साक्षी, I have unmuted you. See here. Now see here. This is what data. अभी मान लो अगर हम बात करते हैं, मान लो हम बात करते हैं, if I talk about the, suppose I am talking about Barsa, so lot of data is associated with the Barsa. Barsa, her name is Barsa. Okay, her mother name data is associated. Her blood group is associated with her. Her height is associated with her. Her complexion is associated with her. Her height, date, blood group, और उसके बाद email ID, website, different type of data is associated with her. ठीक है, और हर डाटा का अपना डेटा टाइप होता है. ठीक है, हर डेटा का अपना डेटा टाइप है. जैसे सेक्शन क्या है तुम्हारा, ये बताओ. सेक्शन है सी, तो अल्फाबेट, एक कैरेक्टर. ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एक कैरेक्टर. उत्तम चंद्रा, म्यूट करो, सामने आओ. ठीक है, कैरेक्टर हो गया. अब नेम की बात करते हैं, तो नेम का डेटा टाइप कैसा हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा. मान लो अब हम कहते हैं हाइट, तो 6 फीट 3 इंच, ऐसा हो जाएगा. ये तुम्हारा फ्लोट हो जाएगा. मान लो हम एज बोलते हैं, तो बोलोगे 16 ईयर, तो कैसा डेटा टाइप हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा. तो अगर हम एक कंप्लीट रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो रिकॉर्ड में अलग 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 तरह का डेटा आता है. Hence it is called, hence it is heterogeneous data type. Record is heterogeneous data type. और इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, सिर्फ एडमिशन नंबर की बात कर रहे हैं, if I am talking about admission number, so this is also integer, this is also integer, this is also integer. Is that clear? Is that clear? Is that clear? बोल ही नहीं रहा है कोई. Is that Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Okay, no problem. Now come to next topic. Clear? Yes, sir. Next, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको मिटा देना. Yes, sir. मिटा दे. Yes, sir. Yes, लिख sir. रहे हो इसको? ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है सत्यनारायण भगवान की कथा. इस सोच से बाहर आइए. कोरोना जो है वो आज है, कल नहीं रहेगा, पक्का. कोरोना आज है, कल नहीं रहेगा, पक्का. ठीक है, अलग बात है कि 10 आदमी का जान जाएगा, 20 आदमी का जान जाएगा, 50 आदमी का जान जाएगा, दैट इज अदर थिंग. मगर आज है, कल कोरोना खत्म हो जाएगा, मगर हमारा पढ़ाई खत्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, द स्टडीज मस्ट गो ऑन. ठीक है, हमारी आदत नहीं खराब होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करना चाहिए.
हर आपदा विपदा में भी आदमी अच्छा अच्छा बात सीखता है, ठीक है। टू कोप विद द सर्कमस्टेंसेस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड थिंग। तो ये समझ में आ गया होगा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. लिख रहे हो कॉपी में? Yes, sir. लिख लिया? आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप, ठीक है। हम क्लास में भी पढ़ाए हैं, ठीक है। एनटीटी, व्हाट इज एनटीटी? एनटीटी, चलो बताओ, आशिका पढ़ाए हैं तुम्हारे क्लास में। वर्षा, मनीषा, सब और रखो वीडियो। त्रिषा, ऋषभ, शैलजा, आयुष, अब वीडियो ऑन रखो। मनीषा बताओ जल्दी, हम एनटीटी पढ़ाए हैं तुम्हारे क्लास में, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। Tell me entity, what is? No, no. बोलो गुंजा। Sir, बोलो। anything which we collect about data is called entity. ये तो मनीषा, गुंजा जो तुम बोल रही हो, बोलना था गाय एक जानवर है, तो तुम बोल रही हो जानवर एक गाय है, ठीक है। बाकी सब सही है। साक्षी, रेज योर हैंड। अनम्यूट करना है तो सिर्फ हाथ उठा दो, मैसेज मत करो, सीधे हाथ उठा दो। मैसेज को हम ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यू वांट बी एबल टू मैसेज, यू रेज योर हैंड सिंपली, ठीक है। चलो बोलते जाओ। Sir, साक्षी, anything which we collect. Sir, बोलो। anything about we collect information or data is called entity. वेरी गुड। और ये क्या बोली थी अभी गुंजा, क्या बोली थी? तो बोलो गुंजा। Sir, anything which we collect about data. तुम बोलो फिर साक्षी। Sir, anything about which we collect information or data is called entity. तुम बोलो गुंजा। Anything which we collect about data or information is known as entity. दोनों बात एक ही बोल रहा है, मगर फिर वही हो गया कि गाय एक जानवर है, जानवर एक गाय है, ठीक है। चलो फिर से बोलो, एक बार और बोलो जी तुम। साक्षी। Sir, anything about which we collect information or data is called entity. तुम बोलो गुंजा। Anything about which we collect data or information is known as entity. ठीक है। उत्तम चंद्रा, एंटिटी पढ़ा है, पढ़ाई हुआ है तुम्हारे क्लास में। हर्ष, हर्ष पढ़ा है जी। एंटिटी क्या होता है बताओ? एनीथिंग्स अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा। मान लो अगर हम साक्षी को कह दिया, ठीक है, सपोज आई हैव टोल्ड साक्षी दैट साक्षी गो एंड कलेक्ट द नेम ऑफ स्टूपिड स्टूडेंट। क्या हमने कह दिया साक्षी को? साक्षी को बोला कि गो एंड कलेक्ट द नेम, एडमिशन नंबर एंड सेक्शन ऑफ ऑल स्टूपिड स्टूडेंट, ठीक है। और सुमिरन को कह दिया कि सुमिरन you go and collect data about all the good student of this school, ठीक है। काम किसको किसको दिया? अनम्यूट करो साक्षी, साक्षी अनम्यूट करो। Yes, sir. सुमिरन अनम्यूट करो, सुमिरन अनम्यूट। यस सर। क्या काम दिया तुमको? गुड स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करने के लिए। डाटा कलेक्ट करना है या रिकॉर्ड कलेक्ट करना है? क्या बोलो सर? रिकॉर्ड कलेक्ट। डाटा क्यों नहीं? सर दोनों कह सकते हैं सर, लेकिन रिकॉर्ड में है सर। तुम बोलो साक्षी। ये बोल रहा है डाटा कलेक्ट करेंगे, तुम बोल रही हो रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे। दोनों में कौन सही है जी? हु इज करेक्ट? रिकॉर्ड सर। रिकॉर्ड होगा, डाटा क्यों नहीं होगा? कलेक्शन ऑफ टेबल ना सर। अच्छा, चल जा तुम बोलो। Yes, sir.
क्या होगा बोलो? डाटा होगा या रिकॉर्ड होगा? सर रिकॉर्ड होगा। डाटा क्यों नहीं? तुम्हारे पापा स्टैटिकल और सुपरवाइजर हैं। आई थिंक आई एम करेक्ट। ही इज ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। एम आई राइट? यस सर। एम आई राइट? तो पक्का Yes, sir. उसी फील्ड की हम बात पढ़ा रहे हैं। डाटा, उनका काम है स्टैटिक्स, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। एंड ही इज बीएसओ, ठीक है। नाम हमको भूल गए, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देंगे तो नाम भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो डाटा एक हो गया जी। सुमिरन, डाटा तुम बोला है, डाटा बोल रहा है, तो मान लो तुम क्या क्या कलेक्ट करोगे? हम तुमको बोला कि यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। विच इंफॉर्मेशन मीन्स या रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब मेनी डेटा। नाम लिखेगा, एडमिशन नंबर, खाली अमित लावेगा तो पूरा डीएवी में हम खोजते रहेंगे कि अमित, कहेगा कि हम भी अमित हैं, हम भी अमित हैं, और गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बदमाश बच्चा का नाम है, कोई अच्छा बच्चा का नाम थोड़ी ना है, ठीक है। तो वो भी कहेगा अमित, हम भी अमित हैं, हम भी अमित हैं, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आएगा, हमने ये लड़की बोली रिकॉर्ड, मतलब कलेक्शन ऑफ सिंगल यूनिट इंटर रिलेटेड डेटा। खाली नाम से काम नहीं चलेगा, क्लास भी चाहिए, सेक्शन भी चाहिए, और बढ़िया होगा कि एडमिशन नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अ कंप्लीट सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिकॉर्ड। इज दैट क्लियर? साक्षी, समझ में आया कि रिकॉर्ड तुम बोल रही थी और हम सही क्यों कहे? समझ में आया? तुमको आया समझ में कि तुम्हारा हम डाटा को गलत क्यों कह रहे थे? Yes, sir. रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक, ठीक है। एंटिटी, एनीथिंग, एंटिटी, anything about which we collect data। जिस किसी चीज के बारे में हम डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटा नहीं बोलेंगे, जिस किसी चीज के बारे में हम डाटा या कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा बोलेंगे। anything about, anything about which we collect data, about which we collect data, about which we collect data is called entity। तो क्या कहते हैं? जिस किसी चीज के बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। जिस किसी चीज के बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी? नो सर। ओके, नेक्स्ट। एक बार जरा कस के बोला करो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, एनीथिंग अबाउट व्हिच वी कलेक्ट डेटा इज कॉल्ड एंटिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट चलो, अब तुम लोग अपने आप को बताओ कि तुम लोग किस किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करोगे। सबसे पहले आशिका बताएगी। आशिका, अनम्यूट, कम ऑन द स्क्रीन। आशिका, चलो बताएगी कि किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करेगी। तुम किस चीज, तुमको क्लास में हम ये पढ़ा चुके हैं, यू शुड नॉट कंफ्यूज। आदित्य राज,
तुम बताएगा कि तुम किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। आयुष कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष कुमार, unmute yourself and start your video. If you do not respond to my instruction, you will be moved out of the class. चलो आयुष कुमार, तुम बताओ तुम किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करोगे। आयुष कुमार, गुंजा तुम बताओ, गुंजा किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करेगी। सर एडमिशन नंबर। नहीं, फिर तुम्हारी एंटिटी क्या है, तुम हमको ये बताओ। व्हाट इज योर एंटिटी? सर माय नेम। अरे नो, चलो हम समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। हर्ष सिन्हा, हर्ष सिन्हा, यस तुम किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करोगे। मनीषा, मनीषा बताओ किस चीज के बारे में तुम डेटा कलेक्ट करोगी। नहीं, फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। शिवानी, About toppers. अबाउट Data of toppers. टॉपर्स। चलो Yes, sir. शिवानी का ये मनीषा का डेटा है टॉपर्स। चलो ठीक है, शिवानी तुम किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करेगी। The name of the student. No, my dear, that is wrong. I will come to your topic. Suman, Suman, चलो हम समझा देते हैं, उसके बाद हम इतने लोगों से फिर पूछेंगे। जितने लोग ऑन द स्क्रीन दिख रहे हैं इतने लोगों से मैं फिर पूछूंगा। अभी अपने आप को अनम्यूट रखना, ठीक है। Sir, about good students. मैं बता रहा हूँ, रुको। मैंने बोला एंटिटी, एनीथिंग अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी मे बी टेंजिबल, मे बी नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब छू छा के जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। सुमिरन, व्हाट आर यू डूइंग? सुमिरन, इट इज बैड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। नाउ anything about which we collect data, that is called entity. उसको हम क्या कहते हैं? entity कहते हैं, ठीक है। अब देखो entity कोई छू छा के देखने का भी चीज हो सकता है, जैसे मिठाई, बस, घर। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अभी ये बोली, कौन बोली थी अभी? मनीषा बोली थी, ठीक है। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट छू देखने का चीज नहीं है, इट इज एन इल्यूजन, ठीक है। तो मान लो अगर हम आशिका को बोल रहे हैं बस का डेटा कलेक्ट करने के लिए, इफ आई एम सेइंग आशिका टू कलेक्ट डेटा अबाउट द बस, तो बस इज एंटिटी फॉर आशिका। इफ आई एम सेइंग गुंजा टू कलेक्ट द डेटा अबाउट all the rooms in my school, room is the entity for the Gunja. Accordingly, Arth Sinha, accordingly, I am saying Harsh Sinha to collect the information about all the sweets, मिठाई। हर्ष सिन्हा को मैंने बोला, Harsh, you go and collect the information about the sweets। तो स्वीट उसके लिए क्या हो गया? एंटिटी हो गया। मनीषा तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोल चुकी है। तो इसी प्रकार अब तुम बताओ शिवानी कि तुम्हारी एंटिटी क्या होगी? What, sir? तुम्हारी एंटिटी क्या होगी? हमने इतना एंटिटी बताया, तुम्हारी एंटिटी क्या होगी? टीचर कैन बी योर एंटिटी? Can you collect data about the teachers? Yes, sir. Okay, Sumiran, what could be your entity? Sumiran, mute yourself, Sumiran. Suman, sorry, Yes, sir. Suman, not Sumiran. Yes, sir.
व्हाट कुड बी योर एंटिटी? तुम्हारी एंटिटी क्या होगी? कुछ बोलेगा? सर व्हीकल्स चलो व्हीकल्स व्हीकल्स, लगता है मेरा क्लास पहले से ही किया हुआ है। तो बस तो हम दे दिया ना, आशिका को हम बस दे दिया है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, जिसको जिसको हम डेटा बोले हैं कलेक्ट करने के लिए, सबका याद है? तो सबसे Yes, पहले sir. चलो आशिका बताएगी ये उसकी एंटिटी क्या है और वो कौन कौन डेटा कलेक्ट करेगा। आशिका। The bus, name of bus, name of driver's name, हाँ जी। name of से किस कंपनी का बस है वो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अच्छा, उसका वो स्कूल बस है कि पैसेंजर बस है। वेरी गुड। आशिका इज कलेक्टिंग डेटा अबाउट द बस। क्या क्या कलेक्ट करोगी बोलो फिर से एक बार और। नेम ऑफ बस, बस का नाम क्या हो सकता है, और बोलो। ड्राइवर का सर ड्राइवर्स नेम, ड्राइवर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और बताओ। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और बताओ। पैसेंजर बस और स्कूल बस, टाइप, टाइप, और बताओ। मोबाइल नंबर सर वो बस ड्राइवर मोबाइल नंबर। ओके, डन। चलो, Yes, sir. so this is your entity and these are the things, these are the attributes. These are attribute of bus entity. Bus. Okay, clear? Yes. Now let's hear the answer of Gunja Rani. Unmute yourself. Yes, sir. बोलो तुम्हारी entity क्या है? All the rooms of a school, sir. अच्छा, First of room all, है। ठीक है, तो what could be the, बोलो क्या क्या कलेक्ट करोगी रूम के बारे में? sir, class, पहले क्लास। चलो ठीक है, कौन सा क्लास? क्लास। section, चलो सेक्शन, number of bench or table in all classes, और नंबर ऑफ बेंच, नंबर ऑफ बेंच, or tables in all the classes, और total number of rooms, ये तो नहीं हो पाएगा। टोटल नंबर ऑफ रूम यहाँ कहाँ से आएगा? रूम हो गया, रूम नंबर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रूम नंबर, क्लास, सेक्शन, नंबर ऑफ बेंच। ठीक है, इसमें sir, number of boards, साइज, नंबर ऑफ बोर्ड। Okay, so these are the things which you collect about the room. इतने सारी बात पूछोगे, ठीक है? चलो next. Now, next it is turn of Harsh. Tell me, what is your entity? Sir, sweets. Sweets, मिठाई। Yes. Sir, name of the sweets. अच्छा, name, मिठाई का क्या नाम है और बताओ। Sir, quantity available. क्वांटिटी कितना किलो? चलो ठीक है, और Cost per kg. कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी, और Sir, customer feedback. कस्टमर फीडबैक। ओके, और कुछ? No, sir. चलो बहुत अच्छा। मनीषा, you told me that you will collect data about the intelligent student. Yes, sir. Tell me. Sir, their names. Intelligent student you told me. Intel student, okay. क्या कलेक्ट करोगी बोलो? नेम, Admission number. एडमिशन नंबर, Class. क्लास, Roll number. रोल नंबर, Father's name. फादर्स नेम। डन। Yes, sir. ओके, इतना सारा चीज कलेक्ट करने के लिए तो बहुत सारा चीज है। सिर्फ पापा का ही नाम नहीं पूछ सकते हैं, मम्मी का भी नाम पूछ सकते हैं।
सिर्फ मम्मी Yes. पापा का नाम नहीं पूछ सकते हैं, दादा दादी का भी नाम पूछ सकते हैं, नाना नानी का भी नाम पूछ सकते हैं। ये भी डाटा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसके खाली मम्मी पापा खुश होते होंगे, दादा दादी भी खुश होते होंगे, नाना नानी भी खुश होते होंगे, मौसा मौसी भी खुश होते होंगे, Yes, sir. बट खुश पूरा दुनिया उससे हो रहा है। हमको डाटा कलेक्ट करना है, जो जरूरत है उसी को कलेक्ट करना है, ठीक है। एंटिटीज आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, जरूरत के अनुसार, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का हाइट भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, वेट भी कलेक्ट कर सकते हैं, दिन में कई बार खाना खाता है ये भी कलेक्ट कर सकते हैं। हमको जरूरत किस चीज का है उसी को हम कलेक्ट करेंगे। मेरा एक स्कूल है, हम स्कूल के पर्पज से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम नेम, मदर नेम, फादर्स नेम, अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट का मैट्रिमोनियल पर्पज से अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, तब उसमें हम फादर नेम, मदर नेम, ब्रदर, सिस्टर और हाइट, वेट, complexion, गोत्र and other things we could collect, right? I hope you have understood. And the last, that is Shivani. Tell me. My entity is about teachers. Name of the teachers. The subject which taught them. Genders of the teacher. Sex I'm writing here. Next. Salary of the teachers. अब तो लॉकडाउन में, और आगे बोलो आगे बोलो। हाइट भी कलेक्ट पूछ सकती हो, वेट भी पूछ सकती हो टीचर का, ठीक है। मदर नेम भी पूछ सकती हो, फादर नेम भी पूछ सकती हो, फादर इन लॉ नेम भी पूछ सकती हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। मगर रिक्वायरमेंट किस चीज का है इस बात पर निर्भर करता है। हमको हाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है, हाइट और वेट से कोई काम नहीं है, हम नहीं पूछेंगे। बात समझ में आया? तो these are attributes। अब इस सारे एट्रीब्यूट का डेटा टाइप होता है। नेम कैसा होगा? नेम स्ट्रिंग टाइप का Sir, होगा। mobile number, इसको date उतार of the लो। birth of teacher. अब इसको, हाँ ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ टीचर, COB ऑफ टीचर। Sir, mobile number of teacher. क्लास है, रिमाइंडर नहीं दे रहा है, मेरा पेड वर्जन है, ये नॉन स्टॉप 30 घंटा तक चलता रहेगा, ठीक है। Sir, mobile number of teachers. Very good, accepted. Now we will meet in the next session. ठीक है, किसी भी दिन एक दिन और हम पढ़ा देंगे, अगर संडे को फिर संक्रांत का दही चूड़ा खाने के बाद पढ़ लेना, ठीक है। और ये अगला क्लास मेरा 2-3 मिनट के बाद है 12 में, तो हमें उसको भी स्टार्ट करना है, वो पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, बाद में पढ़ा देंगे। ये बोर्ड को याद रखना, ठीक है, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।